So just this part I will complete, and then we'll move to the digital communication section. So whenever any instruction is involved and in instruction cycle, so we are having these major issues. First, fetching of the instruction, decoding the instruction, and execution of the instructions. Okay. So this is the case, and we know that uh, all these instructions are written in a memory locations, and program counter basically pointing the instructions. As you know, the content of the program counter should be the instruction which to be executed next. So the content of the program counter, that means address of the instruction which to be executed next. So that is the content of the program counter, and we'll discuss here about several kind of addressing modes. Okay, by taking some examples. So therefore, this is the case of instruction format. The first one is opcode, second one is mode. What sort of addressing mode involving here? And the last one is your address part. It may be zero address, it may be one address, it may be two address, it may be three address. Here should be the addressing mode. Okay, what kind of addressing mode? Direct, indirect, implied, implicit, indexed. Okay, what kind of addressing mode we are involved in here, that must be placed here. And this is the opcode. What type of operation is involved? Addition, subtraction, multiplication, division, shifting, moving. Okay, loading, storing. Okay, or okay, or push, or whatever. So these are the opcodes. That means the operation code. Correct. So this is the numerical example of addressing mode. I just a minute. So sorry for the intervention. Okay, let us take this example. Okay, numerical example for addressing modes. So I want to make clear all the addressing modes by using this short example. Okay, everybody listen carefully. This is program counter. Okay,
The content of the program counter is 200, means it indicating the instruction which to be executed next. So that means this 200, okay, where the instruction is written. R1 is a register that having 400. The content of the R1 is 400. This is one kind of register. This is containing 100. This is accumulator. This is accumulator, and this is your main memory. Okay, this is memory. Addressing is there. 200, 201, 2, etc. 800, and contents also shown here. Contents also shown here. Okay, so now for each and every addressing mode, we calculate the effective address and operand. Okay, so देखो, in the accumulator, hello, may I audible? Hello, सुनाई दे रहा है? Yes sir. Okay, okay. Yes तो sir. देखो, listen Yes, sir. carefully. Okay, listen carefully. I am just discussing all the addressing modes one by one. Okay, so हम लोग पहले क्या पढ़े थे? डायरेक्ट एड्रेसिंग, isn't? डायरेक्ट एड्रेसिंग. तो डायरेक्ट एड्रेसिंग का मतलब है जो एड्रेसिंग पार्ट में जो डेटा रहेगा, जो वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वही होगा एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड. करेक्ट. सो यहाँ पे कि मैंने क्या बोला था? इंस्ट्रक्शन है, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे चलो. लास्ट पार्ट में क्या होता है ना, ये एड्रेस पार्ट का एड्रेस, ये एड्रेस. दिस इज मोड एंड दिस इज ऑपरेंड. Now we are just forgetting about this part, this operand part. So जब डायरेक्ट होता है मोड, डायरेक्ट मोड होता है. So when if you are writing something, मान लो यहाँ पे हम लोग 500 लिखे and we are telling about direct address. Okay, direct address. Okay, direct के लिए हम बात कर रहे हैं. So that means in this address, this 500 is the address of the data operand. Okay, operand means data. Opcode means type of, means hex code of the type of operation, means addition, subtraction, multiplication, division, shifting. All these are called opcode. Or operand means data over which you are performing operations. तो when we are writing direct addressing, तो वो क्या होता है? 500 means 500 लोकेशन में जो है, चलो देखो यहाँ एड्रेस क्या है? 500. डायरेक्ट एड्रेस क्या है? 500. 500 किधर है बाबू? 500 दिस. ये जो है 800, ये है तुम्हारा ऑपरेंड. करेक्ट, दैट इज योर ऑपरेंड. करेक्ट. So load AC, you have written load AC. This opcode में क्या है? Load, I am not writing the hex code. Load AC means you are storing the, loading the, not storing, you are loading the data. Load का मतलब मैंने क्या बोला था? That particular memory location, from that particular memory location, from that particular type of register, data must be where? Accumulator. So that means here जो 500 लोकेशन है वहां पे जो डेटा रहेगा उसी से डेटा एक्यूमुलेटर में आ जाएगा. So मान लो this is the, please everyone listen carefully. If you have doubt, please, I am repeatedly telling you, please respond me and please tell me what's your problem. So this is मान लो 500 लोकेशन, ये एड्रेस पार्ट है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है. तो ये जो डेटा रहेगा, ये जो वैल्यू यहाँ पे शो करेगा वो एड्रेस होगा, इसलिए एड्रेस पार्ट ये मेमोरी है. 500 में आ गया. 500 में कितना रिटर्न है? 800. So after execution of this instruction in direct mode, what should be the content of the accumulator? Please tell me.
नहीं करना, हम नहीं आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ पे खड़े रह जाएंगे। नाउ वी आर डीलिंग विद डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मैं बोल दिया एड्रेसिंग के 3 पार्ट होता है। फर्स्ट पार्ट इज योर ऑपकोड, सेकंड पार्ट इज योर मोड, थर्ड पार्ट इज योर एड्रेस। तो मोड में हम क्या बोले हैं? डायरेक्ट, डायरेक्ट बोले हैं, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट बोले हैं। सो डायरेक्ट एड्रेसिंग में, एड्रेसिंग फील्ड में जो वैल्यू दिखाई देगा, दैट वुड बी द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, दैट मीन दैट वुड बी द एड्रेस ऑफ द डेटा। सो 500 क्या है यहाँ पे? 500 एड्रेस है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद डायरेक्ट एड्रेसिंग। सो 500 लोकेशन में कंट्रोल आ जाएगा। वहां पे क्या है? एम ऑफ 500 क्या है? बोलो। ठंड में प्रॉब्लम होता है ना बोलने में, तो हम देखिए ये ठंड में हम तो बकबक कर रहा हूं ना। सो एम ऑफ 500 कितना है बोलो? 800 है ना, 800। सो ये 800 डेटा कहाँ जाएगा? एक्यूमुलेटर में जाएगा। क्यों एक्यूमुलेटर में जाएगा? तुम बोल सकते हो सर व्हाई इट इज मूविंग टू द एक्यूमुलेटर? बिकॉज इंस्ट्रक्शन वही था, मैं लोड दिया है, लोड बोला हूं, स्टोर नहीं बोले हैं हम, लोड बोले हैं। सो लोड टू एसी, लोड टू एसी, ओके। सो दैट्स व्हाई आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो जाएगा 800। ओके, मान लो एड्रेसिंग में, एड्रेस में हम 702 लिखे हैं, एड्रेस इज नॉट 500, आई हैव रिटन 702, तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना होता? बोलो एनीवन फ्रॉम योर साइड। एड्रेसिंग मोड में हम लिखे हैं एड्रेस पार्ट में 702, सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ लोड एसी, ओके, तो कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर कितना होता? शुड आई कॉल योर नेम? अच्छा, निशु कुमारी बोलो। निशु कुमारी बोलो। एड्रेस यहाँ पे एड्रेस पार्ट है 702 है यहाँ पे। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन लोड एसी, व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर? व्हाट वुड बी द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर? इफ आई राइट इन एड्रेस नॉट 500, आई एम राइटिंग 702, फिर एक्यूमुलेटर में कितना होता? 500 होता तो 800 होता। बोलो सर 3 to 5। यस, थैंक्स अ लॉट। So it should be 3 to 5. Very good. So this is your direct addressing. Clear? Okay. इसी में भी कुछ डाउट है डायरेक्ट एड्रेसिंग लिए, क्योंकि डायरेक्ट एड्रेसिंग हम लोग पहले से पढ़े हैं हम लोग, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ओके, सो दिस इज योर डायरेक्ट एड्रेसिंग। So this is your direct addressing. Now we'll move for indirect mode. Now indirect, डायरेक्ट हो गया, अभी हम इनडायरेक्ट में जाएंगे। इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मैंने क्या बोला था? जब इनडायरेक्ट होगा, यहाँ पे कितना है? 500 है। ये क्या बोल रहा हूँ? इनडायरेक्ट, पूरा नहीं हम लिख रहे हैं। और यहाँ पे लोड बोले हैं, लोड का मतलब है एक्यूमुलेटर में लोड करना है। सो जब इनडायरेक्ट होगा, इज देयर एनीवन कैन गिव मी द आंसर? जे आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इन इनडायरेक्ट मोड, व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर? यहाँ पे बोलो आंसर, आउटपुट क्या होगा? एक्यूमुलेटर में कितना होगा? प्लीज टेल मी। ये इनडायरेक्ट है, पहले डायरेक्ट था। 500 में जो था वही एक्यूमुलेटर का डेटा बन गया था।
लेकिन मैंने क्या बोला, इनडायरेक्ट में जो एड्रेस है उस एड्रेस में जो डेटा है वो एड्रेस होगा ऑफ द ऑपरेंड, इनडायरेक्ट नॉट डायरेक्टली। सर 800 होगा सर। 800 तो पहले था, अभी तो डायरेक्ट में 800 था। अभी इनडायरेक्ट में क्या होगा, जो तुम 800 बोल रहे हो वो डायरेक्ट में था, हम इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूं। सुनिए मेरा बात सुनिए, indirect address में if you listen my voice carefully, my words, it will be easier to give the answer. So 500 means ये जो डेटा है indirect में, ये जो डेटा means I am not telling you operand, ये जो value numerical value होगा यहाँ पे, that is not the direct address of the operand, rather it is the address of the address. This is the address of the operand. दिस लोकेशन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा दैट विल बी द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। इनडायरेक्ट है ना, 500 लोकेशन में जो डेटा है वो नहीं डेटा है, वो एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड है, वो एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड कहाँ पे है, 500 लोकेशन में जो एड्रेस है उस एड्रेस में तुमको जाना पड़ेगा। सर 300 सर। 300। So execution of indirect addressing, the content of the accumulator must be 300. Why it is so? Listen my dear student, if you understood this addressing mode, that will be the Christmas gift for you. So डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट में क्या बोला मैंने, ये 500 एड्रेसिंग पार्ट में 500 है, लेकिन मोड में हम बोल दिए हैं दिस इज इनडायरेक्ट। तो फर्स्ट चलो 500 लोकेशन में आ गए तो यहाँ पे, लेकिन कितना है 800 है, दैट इज द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। सो नाउ यू रिट्रीव इट एंड यू कम हियर 800 लोकेशन, एंड 800 लोकेशन में कितना डेटा है, दिस इज द डेटा नाउ। तो ये 800 क्या था, एड्रेस था, किसका था, ऑपरेंड का। सो इसलिए 300 हो गया। सो दिस इज द ब्यूटीफुलनेस ऑफ द एड्रेसिंग मोड। देखो कैसे ये चेंज हो रहा है, डायरेक्ट में कैसे हमको एक्यूमुलेटर में मिला था, अभी इनडायरेक्ट में क्या मिला है। सो दिस इज ब्यूटीफुल, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ द एड्रेसिंग मोड। सो दिस इज द इनडायरेक्ट केस। हैविंग एनी डाउट among these 24 students? So now we'll go for some other technique, okay. Okay, so देखो यहाँ पे भी है, you must go through, okay, as I know I am not showing you, देखो direct address, okay, then देखो indirect addressing, okay. So now we'll go for relative mode, okay, effective address in, now we'll go relative mode, okay. So direct mode, indirect mode हो गया, now we'll move for relative mode. Now relative mode में you have to find out the effective address, okay. Relative mode में you have to find out the effective address. How to find out the effective address? Now effective address is 500 plus 202, 500 plus 202 relative, effective address क्या है, effective address I am writing so in short, that is 500, that means that is the instruction में जो था, प्लस कितना किए हैं देखो 202, how much, that is 702, that is the effective address. So what is the 202? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सर। Content of the program counter after
So note that the value in PC after the fetch phase and during the execute phase is 202. So देखो प्रोग्राम काउंटर में देखो 20 था. Now after fetching this instruction, content of the program counter क्या होता है? मैंने क्या बोला था? The instruction which to be executed next. So 20201 तुम्हारा इंस्ट्रक्शन था, ये तुम्हारा इंस्ट्रक्शन, ये तो एग्जीक्यूटेड हो चुके हैं, इसलिए प्रोग्राम काउंटर इसका नोट करेगा, डिनोट करेगा, इंडेक्स करेगा. तो हम इसको नोट करेंगे. तो रिलेटिव में कैसे तुमको इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना है? 500 दैट मींस जो एड्रेस डायरेक्ट एड्रेसिंग बोला है दैट इज प्लस प्रोग्राम काउंटर का जो एड्रेस पार्ट है, दैट मींस कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, दैट इज द कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर. कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम काउंटर कितना है? 20 स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये दो इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन 200 201 में ये तो एग्जीक्यूटेड हो गया, नहीं तो तुमको क्या मिला? लोड एसी कैसे तुमको मिल गया? इसलिए रिलेटिव में when you are going for calculating effective address, at that point you have to find out the content of the program counter, that is here 202, and the basic address how much? 500. So that's why effective address right now for relative addressing how much? 702. So 500 the basic address जो दिया था and the program counter का content दोनों मिलाकर effective address हो गया. Now you people tell me what should be the content of the accumulator right now, because it is a loading instruction. Sir 325 sir. So 702 में कितना है? 325. Is this correct? ये जो बोला है, is this correct? Is there any doubt? Anyone, or you are also agreed? Some student may have some conflict. Those are having, I want to know the name of the student. Those are having conflict, I would be happy if anyone keeps some different concept. So after execution of this instruction in relative mode, that's why I see you people listen, मोड कितना इंपॉर्टेंट है. वो जो मोड पार्ट है इंस्ट्रक्शन में, वो कितना इंपॉर्टेंट है. तुम डायरेक्ट दे दोगे तो उसका एक्यूमुलेटर में क्या कंटेंट है, तुम इनडायरेक्ट दे दो तो कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर कैसे चेंज हो रहा है, तुम रिलेटिव डाल दो तो वहां पे कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर कैसे चेंज हो रहा है. So this is, I am giving very simple example for making understand to you people. So the content of the accumulator, if you choose relative addressing mode, then it would be 325. Absolutely, this is correct. Okay, this is correct. So in effective address, how to calculate in relative mode, how to calculate effective address means the address, the basic address जो है in the instruction, that is plus content of the program counter. Okay, now I am giving one more example here. मान लो ये 500 नहीं है, ये मान लो तुम्हारा मान लो 198 है. ओके 198 है, ठीक है. ये जो एड्रेस है ये 500 नहीं है, ये 500 नहीं है, ये 198 है, ठीक है. ये 198 है, 198 है. तो अब कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर क्या होगा बोलो? I need answer from other participant. Otherwise, I will call your name. 198 ये बेस एड्रेस है,
अब प्रोग्राम काउंटर तो फिक्स है 202, तो इफेक्टिव एड्रेस कितना होगा बोलो? 198 प्लस 202 कितना होगा बोलो? बोलो एडिशन करो, कितना होगा? सर 400। 400। थैंक यू। 400। तो बोलो कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर कितना होगा? तुम तो आंसर दे दिया। 700 sir. 700। 700। आई एम सो हैप्पy. So it should be 700. So this is your relative addressing. So direct, indirect, relative, completed. Okay. So now we'll move some other techniques. तो relative हो गया. You must follow this video lecture. Okay. So indirect हो गया. ठीक है. अच्छा. Relative भी हो गया. Now index mode. Index mode. Index mode, you have to find out the effective address. So indexed. इंडेक्स मोड. बेस एड्रेस तुम्हारा 500 है, ये कोई दिक्कत का बात नहीं है, लेकिन मोड यू हैव सिलेक्टेड इंडेक्स. ओके. मोड सिलेक्शन में क्या है? इंडेक्स एड्रेसिंग है. सो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस, हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव एड्रेसिंग. देखो सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा इजी सब्जेक्ट कहाँ पे तुमको नहीं मिलेगा. इफेक्टिव एड्रेसिंग क्या है? ये 500 होगा, कोई टेंशन का बात नहीं है. प्लस कंटेंट ऑफ द XR रजिस्टर. कंटेंट ऑफ द XR रजिस्टर. XR रजिस्टर में कितना है बोलो? बोलो. XR रजिस्टर में कंटेंट कितना है? बोलो. Sir 100 sir. 100 sir. थैंक यू. इसलिए तुम लोग नहीं हेल्प करोगे तो हम मुसीबत में पड़ेंगे. सो 500 प्लस 100 कितना होगा बाबू? Sir 600. वाह, दैट्स ग्रेट. 600. तो बोलो एग्जीक्यूशन ऑफ इंडेक्स मोड एक्यूमुलेटर में कितना होगा? Sir 900 sir. 900। वाह, सब लोग समझ गए. कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर 900. तो देखो कैसे कैसे एक्यूमुलेटर का कंटेंट चेंज हो रहा है. तो इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन सेम है, लेकिन एड्रेसिंग मोड चेंज हो गया था, बस सत्यानाश हो जाएगा. सो यू हैव टू यूज, you have to know the concept about different sort of addressing mode, and this addressing mode is most important in your semester exam. The way I have teach you, you have to remember, and if they are asking questions, you have to give their names one by one and one example. So this is your index mode. Okay. So content is 900. Correct. Now register mode. Index mode हो गया, ठीक है. नाउ विल मूव फॉर रजिस्टर मोड. रजिस्टर मोड. रजिस्टर मोड. ओके. रजिस्टर मोड. ओके. ये देखो रजिस्टर मोड. ओके. तो रजिस्टर मोड में तुमको कहाँ जाना पड़ेगा? R1 sir. बिकॉज रजिस्टर मोड है, मोड में लिखा है रजिस्टर, तो यू हैव टू मूव है रजिस्टर. रजिस्टर में कितना है? 400. Sir R1 400 sir. So after execution of register addressing,
What should be the content of the accumulator? 400 sir. बोलो। So now register मोड में इफेक्टिव एड्रेस कितना होगा? रजिस्टर ये है, मीन्स रजिस्टर मतलब क्या है? मीन्स ये रजिस्टर ही तुम्हारा एड्रेस बन गया, समझ गया ना? समझ गया? यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस मीन्स वो एड्रेस itself. So R1. So accumulator का कंटेंट कितना होगा? 400. Sir 400 sir. 400 होगा। सर सर सॉरी सर 400 700 700 यहाँ पे ये देखो कंफ्यूजन मत होना है ना, इसलिए मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ। इफेक्टिव एड्रेस में मैंने क्या लिखा? R1 लिखा है, मैंने R1 ही इफेक्टिव मैंने मींस R1 R2 R3 R4 R5 R6 ऐसा करके करके तो रजिस्टर्स है। यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर में रजिस्टर नहीं है, फाइनाइट नंबर में रजिस्टर्स है। तो R1 R2 R3 है ना, वहां पे मैंने दिखाया था शुरू में, जब R1 होगा 001 होगा तुम्हारा डिकोडर में, तो R1 सिलेक्टेड हो जाएगा। सो इसलिए इफेक्टिव एड्रेस R1 इससेल्फ है। तो R1 में कितना डेटा है? 400 है। सो कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर हो जाएगा 400। मान लो R2 बदले में यहाँ पे R2 लिखा, R1 की जगह में R2 है, R1 नहीं है, और यहाँ पे लिखा है 30, तो क्या हो जाता? ये इफेक्टिव एड्रेस R2 बन जाता। सर क्या सर एक और बार रिपीट कीजिए सर। मान लो R1 नहीं मेंशन है, R2 मेंशन है, एड्रेसिंग मोड में R2 है, R2 का बात क्या है? तो तब एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना है? R2 का कंटेंट है मान लो 20। यस सर। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट हो जाएगा 20। जो रजिस्टर में जो डेटा रहेगा वही कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर हो जाएगा, यस है ना? मींस कंटेंट ऑफ द R2 register is 20, so 20 will go to the accumulator। ठीक है, ये है तुम्हारा रजिस्टर। सो जब रजिस्टर होगा तो लिखना होगा रजिस्टर में कितना वैल्यू है, दैट इज योर डेटा। नाउ रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड, रजिस्टर ये डायरेक्ट था, रजिस्टर मींस रजिस्टर डायरेक्ट, इस बार रजिस्टर इनडायरेक्ट। रजिस्टर इनडायरेक्ट, ओके। नाउ जो तुम लोग पहले बोले थे एक दो स्टूडेंट, अब अभी होगा। मींस इफेक्टिव एड्रेस क्या होगा? यहाँ पे R1 नहीं होगा, इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे होगा कंटेंट ऑफ द रजिस्टर, सॉरी कंटेंट ऑफ द रजिस्टर R1 जो है वही। सो कंटेंट ऑफ द रजिस्टर R1 कितना है यहाँ पे? 400। इफेक्टिव एड्रेस हो जाएगा 400। अभी देखो 400 डेटा नहीं है, पहले डेटा बन गया था डायरेक्ट में, रजिस्टर डायरेक्ट में एक्यूमुलेटर में कितना था? 400। देखो जस्ट फ्यू मोमेंट अगो आई हैव रिटन दैट वन 400, है ना? इसको बात बता दो, मैं बाद में लिए थे एग्जांपल। लेकिन अभी क्या होगा बोलो? एक्यूमुलेटर में रजिस्टर इनडायरेक्ट में कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर क्या होगा? सर 400 सर, अगर 400 होगा तो वो उसके अंदर का डाटा सर 700 जो होगा सर, उसका सर एड्रेस मोड पे जाएगा सर, एंड उसका सर जो डाटा होगा उसको प्रिंट करेगा सर। क्या बोलो? अल्टीमेटली आई नीड द आंसर, व्हाट शुड बी द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन इन रजिस्टर इनडायरेक्ट मोड? सर इनडायरेक्ट मोड में सर अगर 700 तो 700 सर एड्रेसिंग मोड सर नहीं है सर, कहीं 702 है। कितना होगा एक्यूमुलेटर का कंटेंट? कितना होगा बोलो? सर एक्यूमुलेटर कंटेंट में सर जो 700, एवरीवन थिंक एंड गिव द आंसर। मैंने बोला रजिस्टर इनडायरेक्ट में
रजिस्टर में जो कंटेंट होगा दैट विल बी द इफेक्टिव एड्रेस, इसलिए मैं इफेक्टिव एड्रेस में क्या लिखा 400। ओके, सोचो इफेक्टिव एड्रेस का क्या फायदा है। सर 325 सर। मैं इफेक्टिव एड्रेस बोल दिया 400, ठीक है। यस सर। तो एक्यूमुलेटर का कंटेंट कितना होगा? एनी अदर स्टूडेंट, एनी अदर कैंडिडेट, एनी अदर स्टूडेंट बोलो।